Good afternoon, students. So, topic of the day is the perfect tense. We'll see today what's the present perfect, past perfect and future perfect, the sentence structure and the usage. कि हम कहाँ पे किस situations में perfect tense का सहारा लेते हैं, right? Okay, let's look at these words. That's the normal sentence that you used to speak in your classes. I have done my work. As soon as you finish with your work or you copy down from the blackboard, you tell it to teacher that I have done my work. What is this? It's you want to convey that your work is over, right? She has not done her work. Has the teacher checked your notebook? Have they not checked their result? What are these actions actually describing? They are just showing some connection in the past and the present. The action somewhere started in the past but has some connection with the present as well. Right? Sorry. Right? It's over in the recent present. Right? And has some connection in the past because obviously it must have started earlier than the moment you're speaking. Right? So this is called present perfect tense. So present perfect tense is a sort of mixture of the present and past and can be seen that present tense, it is a present tense which look backwards into the past. Like if I say, I have written 3 letters since morning. Yeah, I have written 3 letters so far. तो 3 letters finish हो चुका है, perfection of action is there, right? सुबह से मैंने 3 letter लिखे हैं या लिख चुका हूँ. इसमें finish होने की sense होती है. The action which is now perfect का meaning it's finished, over, right? But in the present, obviously it started somewhere earlier than that moment you are speaking, so that is why it is present perfect. जब कोई action का perfection in the present time हो, so that is present perfect. When you say I have done my work, that means you want to convey to your teacher कि आप जो भी काम कराना शुरू में start किया था वो अब मेरा खत्म हो चुका है. I have done my work. So I के साथ क्या आया? Have. Whereas you see, she के साथ क्या आ रहा है? Has. She has. Has the teacher. Teacher is he, she, it singular. तो क्या आया? Has. They is plural. So क्या आया? Have. Now this is a negative sentence where not is involved. This is an interrogative sentence. We just brought the has have out. Again, this is interrogative, but again because it has not as well, so it is negative interrogative. So these are the 4 forms of sentences in the present perfect. Now let's look at the structure once again. A sentence structure: the subject plus has or have plus third form of verb. As you remember, like do, did, done. So what's the third form? It's done, right? I के साथ have done my work. Work is the object. Now कहाँ use करते हैं? What's the usage of it? To express an action that has just been completed, जो अभी finish हुआ है. For example, I have just had my evening tea. यहाँ had क्या है? Has, have, had. Has, have की जो second form होती है वो भी had होती है, third form होती है वो भी had होती है. तो यहाँ मैंने have को as a verb लिया. ये have इसके साथ है I have, the main helping word. But this is the third form of verb. ठीक है, बीच में just extra word है showing the time, recent time. I have had my evening tea. had की जगह taken भी हो सकता था. take, took, taken. I have taken my evening tea, just taken. She has just come, right? Secondly, to express an action which began in past and it's still having some continuity in the present. Like when I say we have lived here for 3 years. 3 साल पहले भी रहता था और अभी भी ये action हो रहा है. I'm still living. It shows that I'm still living. We have lived for 3 years. अब इसे देखो, he has been ill since Friday. That means
जब हमने हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे बोला तो दैट मीन्स इट इज ही इज स्टिल इल. वी वॉन्ट टू शो कि फ्राइडे को बुखार शुरू हुआ था और अभी भी उसको बुखार है, राइट. अब आप एक सेंटेंस और देखो, ही हैज़ नॉट कम दिस इवनिंग. अगर मैं कहती हूँ ही हैज़ नॉट कम दिस इवनिंग, इसका क्या मतलब हुआ ये देखेंगे. और अगर मैं लिखी हूँ ही डिड नॉट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, नहीं आया, हम सिंपल पास्ट में भी बोल सकते थे ही डिड नॉट कम दिस इवनिंग. तो दोनों के सेंस में क्या फ़र्क है. ऑब्वियसली कई तरह के सेंटेंसेस सेम सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं, टेंसेस दो भी यूज़ हो सकते हैं. अब कौन से का क्या मतलब बनता है. लुक एट दिस. अगर मैंने कहा ही डिड नॉट कम दिस इवनिंग, दैट मीन्स जो ये इवनिंग है ना ये ख़त्म हो चुकी है. आई वॉन्ट टू शो दैट इवनिंग इज ओवर नाउ एंड वो नहीं आया शाम को, ठीक है. लेकिन जब मैं यहाँ बोल रही हूँ ही हैज़ नॉट कम दिस इवनिंग, सो आई वॉन्टेड टू हैव सम कनेक्शन टू द प्रेजेंट एज वेल. और ये इवनिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स स्टिल इवनिंग. दिस शोज दैट इट इज स्टिल इवनिंग और ये अभी तक नहीं आया, राइट. सो दैट्स द डिफरेंस इन यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और हम प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं. फॉर द पास्ट इवेंट्स जिनका टाइम ना दे रखा हो, हुज टाइम इज नॉट, वी डू लाइक द टाइम इज इनडेफिनिट, हमें नहीं पता कब, लाइक राइट. लाइक आई हैव बीन टू अम्बाला थ्राइस, मैं 3 बार जा चुका हूँ. वी हैव सीन द ताजमहल, हम देख चुके हैं. अब नॉट डेफिनेट कि कब देखा था कब नहीं देखा था, सो जस्ट कि हम देख चुके हैं. अब इसमें जो ये है फॉर और सिंस बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैंने फॉर और सिंस लिखा है. फॉर कब यूज़ होता है, जब हम कह रहे हैं it has been raining me, it has rained for 2 hours, so 2 घंटे, this is period of time. जबकि अगर मैं since बोलूँ, लाइक यहाँ पे हमने लिया था since Friday, he has been ill since Friday, it's the point of time, Friday से, so the point of time के लिए since आता है, whereas for the period of time के लिए for आता है. जब आप period शो करना चाहे, हाँ 2 घंटे हम शो करना चाह रहे तो for से, पॉइंट ऑफ टाइम कि फ्राइडे से, कब से, फ्राइडे से, सो सिंस. सो फॉर और सिंस का. और बहुत सारे से ऑलरेडी, सो फार, ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जो परफेक्ट टेंस में नॉर्मली होते हैं. एवर, आई हैव यू एवर सीन ताज, सो एवर शोइंग सम लाइक एडवर्बियल फ्रेज शोइंग सम टाइम. अब आते हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी वही, the action which is over has been finished, हो चुका था, in the past, चुका था, चुके थे, right. I had done the whole work by 7, मैं 7 बजे तक अपना काम फिनिश कर चुका था, right. This is a very हम भी पढ़ते थे तब भी यही सेंटेंस होता था. The patient had died before the doctor came. अब मरने का एक्शन हो चुका है, पेशेंट मर चुका था जब तक डॉक्टर आया. डिड यू से यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट, और यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट. इसका ये इस सिचुएशंस में भी पास्ट परफेक्ट यूज होता है जब 2 एक्शंस पास्ट में हों और कौन सा उस पास्ट में पहले फिनिश हो गया है वो आता है पास्ट परफेक्ट में. नाउ लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर. फॉर द एफर्मेटिव सेंटेंस दैट मीन पॉजिटिव, यू जस्ट हैव टू हैव सब्जेक्ट प्लस हैड, नो हैज हैव, ओनली हैड. चाहे सब्जेक्ट ही शीट सिंगुलर हो, चाहे आई यू विद ए प्लूरल हो. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेगेटिव बनाना है तो दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा. इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये हैड बाहर आ जाएगा. नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड बाहर और नॉट बीच में, राइट. लाइक अगर मैंने बोलना है द पेशेंट हैड नॉट डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, हैड द पेशेंट नॉट डाइड, right, before the doctor came. So let's see the usage once again. When 2 actions completed in past, दोनों actions past में complete हुए. यहाँ पे the patient had died before the doctor came, doctor भी past में बात है, ये भी past में है. लेकिन the past perfect कहाँ हमने use करना है, which action is completed before the another one. डॉक्टर के आने से पहले ये मर चुका है, राइट. तो ये एक्शन डॉक्टर के आने से पहले खत्म हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आया, राइट. लाइक द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी.
जब हम स्टेशन पहुंचे. Now second, to express an action completed before a certain point of time in the past. जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, I had done the whole work by 7. Right? Similarly, I had finished my work at 4. 4 बजे तक काम खत्म कर चुका था. Now यहाँ पे भी इन सिचुएशंस में भी पास्ट परफेक्ट यूज होता है. कौन सी सिचुएशन? इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, जहाँ हम कुछ कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं और जो पॉसिबल कंडीशन नहीं है. लाइक इफ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लोन टू पेरिस. आकाश मेरे अगर पंख होते मैं ये कर लेता. राइट. इफ ही हैड जम्प्ड इनटू रिवर द डॉग कुड बी सेव्ड. हो सकता है डॉग डूब रहा हो, अगर वो जंप कर गया होता तो ये डॉग को बचाया जा सकता था. सो समथिंग लाइक वेयर द कंडीशन इज नॉट पॉसिबल एंड यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक इन द पास्ट. राइट. नाउ द लास्ट, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट में भी वही, परफेक्ट मीन्स जो फिनिश करने की सेंस दे. द एक्शन इज कंप्लीट, परफेक्ट, लेकिन इन द फ्यूचर टाइम. नाउ लाइक वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय संडे. अब हमारा ये काम फिनिश नहीं हुआ है अभी. राइट. लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमारे को एक आइडिया है. ठीक है. क्या आइडिया है? कि इस संडे तक हम ये काम फिनिश कर चुके होंगे. वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय दिस संडे. अब वी के साथ शैल, ही के साथ विल. बट एज आई टोल्ड, विल भी खराब मतलब गलत नहीं होगा. बट अगर ग्रामेटिकली देखें, आई यू वी दे प्लूरल के साथ शैल, ही शी इट सिंगुलर के साथ विल. Right? So we shall have finished our work by Sunday. He will have crossed the border by now. अब assume कर रहे हैं कि अभी तक वो border cross कर चुका होगा. So what's the sentence structure? Subject plus will shall plus have plus third form of verb. Or usage as I just reflected, to express an action which is expected to be over at a given time in future. जहाँ हम ये सोचने हैं फ्यूचर में एक कोई गिवन टाइम है, उस तक वो एक्शन के फिनिश हो जाने की संभावना है. राइट. दैट्स ऑल. विल बी टेकिंग अप दिस with lot of exercises. 2-3 days we'll be doing perfect tense. Go through, watch this video again and again to be familiar with the perfect tense. Thank you.